Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is When, Where and How. And what we are going to read in this chapter about the history and prehistory, about the geographical factors and their importance and the sources of history. First we will discuss about what is history. History means the story of man. It deals with events that have happened in the past, जो past में हो चुका है, that is called history. Okay, it tells us how man lived from age to ago and what problems men and women faced and how they tried to solve those problems. कि पहले के लोग जो थे वो कैसे रहते थे, ठीक है, उन्हें क्या problems थी, कैसे उनको solve करते थे वो. History tells us how people lived in the past and how they grew the plant which gave them food. कैसे उन्होंने food grow करना सीखा, कैसे cooking सीखी, कैसे fire की discovery हुई, कैसे उन्होंने weapon बनाना सीखा. Okay, तो जो भी हम past की study को read करते हैं that is called history. And the scholar जो इसकी study करते हैं, the scholars who study the past are called historians. यानी जो history की study करते हैं, जो हमें book में लिख कर बताते हैं, जो स्टडी करते हैं किससे क्या हुआ है, कैसे पता लगा है, पहले के लोग क्या करते थे, उन लोगों को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. They take the help of various sources such as manuscripts, inscriptions and remain of building to reconstruct the history of the past. वो सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट होता है कुछ लिखा हुआ जो मिला है पहले का, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है, ये आगे पढ़ोगे आप क्या होते हैं, ये कुछ बिल्डिंग के रिमेन्स हैं कि उनसे कैसे क्या हमें पता लगा है, वो हिस्ट्री को क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. दैट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. नाउ फर्स्ट we will discuss about evolution of man. The finding of the modern revolutionary researchers tell us that the life began on the earth ever before prehistory. कि prehistory से पहले, prehistory क्या है, जिसके हमारे पास written sources नहीं हैं, उससे पहले ही life began हो चुकी थी. As a matter of fact, a number of living organisms including plants, fish, reptiles and birds appeared on the earth a long time before man did. And ever since the began on the earth, these organisms have been changing. Some older forms have perished and new ones have come into existence. This process is known as organic evolution. इस process को क्या कहते हैं, organic evolution. यानी human being से पहले ही बहुत सारे living creature इस अर्थ पर exist करते थे, ठीक है, जैसे कि fish, reptiles and so on. तो इसको क्या कहते हैं, that is called organic evolution. It is an extremely slow process and it is still going on. और फिर उसके बाद past से फिर आगे present हुए, ठीक है, और उनके आगे future आया, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. अब उसमें से कुछ नहीं है, कुछ हैं, किसी से न्यू बन गए हैं, एंड ये प्रोसेस जो है ये बहुत स्लो होता है और स्टिल चलता रहता है. It was around 2.5 million years ago that man appeared on the earth, probably in Africa, in the form of an ape-like creature and gradually developed to what we are today, an upright man. और ऐसा माना जाता है कि 2.5 million years ago जो ह्यूमन बीइंग हैं उनकी शुरुआत हुई थी, और मैन जो है सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था, ठीक है, मैन अपीयर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ अ एप, ठीक है. एप के बाद धीरे धीरे जैसे अब हम हैं सीधे खड़े हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, ऐसे उसकी फॉर्म जो है एप की चेंज होती चली गई, ठीक है, इरेक्ट होती चली गई, एंड एप से हम क्या बन गए, ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है. Okay, we know that dates of many events that occurred thousands of years ago. This is because they were recorded by people at the time of their occurrence. Today, these records have become important sources of history from which we get the information about our past. Thus, we have detailed information about many wars and several other activities performed by the peoples long time ago. But in case of many other events, we have no ideas to when and where they took place. The discovery of the fire and invention of the wheel are some such events. These events had taken place long before human beings learned the art of writing.
and the period for which we have no written records is called prehistory, and it is the period of time between the appearance of the earliest humans and the development of the art of writing. Now कुछ डेट ऐसी होती हैं हिस्ट्री इवेंट्स की जो हमें अच्छे से मालूम है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ब्रिटिशर्स कब आए थे, मुगल ने कब से कब रूल किया था. क्यों हमें ये पता है? क्योंकि किसी न किसी ने ये रिकॉर्ड किया है, लिखा है, जो हमें मिला है हिस्ट्री से, तो उससे हमें उन इवेंट्स की डेट का अंदाजा है. ओके, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जैसे कि फायर की डिस्कवरी कब हुई, व्हील की इन्वेंशन कब हुई, इसका हमें कुछ नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि उस टाइम ह्यूमन बीइंग को लिखना नहीं आया था. ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि कब ये इन्वेंशन हुई थी. तो ऐसी चीजें, ऐसा टाइम, द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, दैट इज रेफर्ड एज प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री मतलब जिनका हमारे पास रिटन में है, प्री हिस्ट्री जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं. शायद ये वो टाइम होगा जब ह्यूमन बीइंग जो है वो लिखना सीख रहा होगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री. Now periods of recorded history. Now we will discuss about history. ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज एंशियंट एंड मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री यानी पुरानी, जिसमें प्री हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, मेडिवियल यानी मिडल हिस्ट्री जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, कुछ मिले हैं, कुछ नहीं मिले, कुछ रिटन पेंटिंग फॉर्म में है, कुछ ऐसी राइटिंग, ऐसी स्क्रिप्ट में है जो हमें समझ नहीं आते. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उसके हमारे पास एग्जैक्ट सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं. तो इस तरीके से हिस्ट्री को, रिकॉर्डेड हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट द पीरियड्स हैव नॉट बीन द सेम at all the time of the places. The modern period for the colonial countries started much later than in the respect of European countries. अब ये जो टाइम है एंशियंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री का, जरूरी नहीं है ये हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक देश में सेम टाइम पर शुरू हुआ हो. ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये जो हिस्ट्री का पीरियड है ये बिल्कुल डिफरेंट है. फाइन. नाउ डेट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. कैसे हमें डेट्स का पता लगता है, कैसे उनकी इम्पोर्टेंस है? Past events with known dates are recorded in history in a certain order so that we may understand which events took place first and which ones later. Recording events in the order in which they happened is called chronology. जो हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें पास्ट इवेंट को इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है कि हमें पता लगता है उसकी डेट को देखकर कि कौन सा इवेंट कब हुआ था. तो ये जो दैट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स इन द ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजी. यानी इस लिखने को, डेट वाइज लिखने को, इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड उनको लिखना, उनको क्लासिफाई करना रेफर्ड एज chronology. Fine. Now historians or people who study history have regarded the year of the birth of Jesus Christ as the point from which dates are counted. अब जिसने भी ये लिखा है, जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को 0 मार्क किया है, वहाँ से उन्होंने काउंटिंग शुरू की ईयर की. फॉर द डेट्स ऑफ इवेंट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी यूज द एक्रोनिम दैट इज BCE. जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ था उसको हमने BCE में किया है. एंड द डेट्स ऑफ इवेंट आफ्टर क्राइस्ट बर्थ दैट इज रेफर्ड एज CE, दैट इज कॉमन ईरा. while the dates in BCE are counted backward, though in CE are counted forward. BCE में backward counted होती हैं, ठीक है, और CE में forward counting होती है. Now geographical factors and their importance. Geographical features of a country or region play an important role in shaping its history. The Indian subcontinent, consisting of India and its neighboring countries, is a great example of this. Look at the map of the India. ठीक है, this is the map of the India. In the northern part of the subcontinent lies the Himalaya mountain range, separating India from the Central Asia countries. अब India is a part of Asia continent. ठीक है, इसके नॉर्थ में ये क्या है? हिमालयाज हैं. हिमालय क्या कर रहा है? इंडिया को एशिया से सेपरेट कर रहा है. ठीक है, एंड
people have traveled to India through narrow paths called passes. अब इंडिया में आने के लिए छोटे छोटे रास्ते लोगों को ट्रैवल करने पड़ते थे, जिनको क्या कहते हैं, passes. जो माउंटेन से जो रास्ता आता है उसको पास कहते हैं. ओके, in the mountains, and the blending of the cultures of the people of India and of those who travel to India formed new customs and culture. अब जो भी इंडिया में दूसरे देशों से, दूसरे कॉन्टिनेंट से जो लोग आए, वो अपने साथ नए कस्टम, नए कल्चर लेकर आए, नए रीति रिवाज लेकर आए. Another important features of the Indian subcontinent is the vast fertile plains of the river Indus and Ganga. अब दूसरा क्या फीचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कि जो प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस एंड गंगा. द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन द रीजन केम इनटू एग्जिस्टेंस हियर. ऐसा माना जाता है जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हुई थी वो इंडिया से शुरू हुई थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से. एंड द थर्ड मेजर फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज व्हाट वी कॉल द सर्दर्न पेनिनसुला और वी कैन से डेक्कन प्लेट्यू. दिस रीजन इज फुल ऑफ माउंटेन्स, रिवर वैलीज एंड द प्लेट्यूज. Over the past thousands of years, people of these regions have developed their own unique identities, bringing in a great diversity to the culture of the country. थर्ड क्या है, पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन साइड से पानी से घिरा हो. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने नए कस्टम, नए रिलीजन शुरू किए थे, और जो कि पूरे कंट्री के कल्चर को जिन्होंने डिफाइन किया. Now next is sources of history. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज क्या होते हैं, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनको कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. कि कैसे हमें हिस्ट्री का पता लगता है, हिस्ट्री के सोर्सेज से हमें पता लगता है. सोर्सेज जो हैं दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल होते हैं जैसे कि बिल्डिंग रिमेन है, या कोई यूटेंसिल मिला है, कोई पोर्ट मिला है, उसकी चीज़ों की, ठीक है. जैसे क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की स्टडी करते हैं, ठीक है. आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट दैट आर डिस्कवर्ड थ्रू डिगिंग और एक्सकवेशन कंडक्टेड एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट. मानो किसी जगह का हमें इतिहास जानना है कि यहाँ क्या हुआ था, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर खुदाई कराते हैं बहुत डीप तक, ठीक है. अब डीप इनसाइड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जैसे कि बोन्स ऑफ एनिमल्स, स्केलेटन मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, कोई मिनरल मिल सकता है. तो उससे वो स्टडी करते हैं, उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सेकंड क्या है आपका, दैट इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, लिटरेरी नाम से ही पता लग रहा है जिनको आप पढ़ सकते हो, जो आपके पास रिटन रिकॉर्ड में है, रिटन इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट की फॉर्म में है या पिक्चर की फॉर्म में है, पाम लीव्स पर लिखा हुआ है या पत्थरों पर लिखा हुआ है, जो भी रिटन फॉर्म में है दैट इज लिटरेरी सोर्सेज. ओके, नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मोन्यूमेंट्स. मोन्यूमेंट क्या होते हैं, पुरानी इमारतें, किसी राजा महाराजाओं ने कुछ भी बनाया, ठीक है, तो उनके मोन्यूमेंट के अवशेष जो हैं जब हम डिग करते हैं वो अंडरग्राउंड मिलते हैं, ठीक है, उससे हमें पता लगता है. जैसे द ruins ऑफ नालंदा, द फेमस एंशिएंट यूनिवर्सिटी टेल अस हाउ बिग इट मस्ट हैव बीन इन दैट एज. जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के हमें जो मोन्यूमेंट है, जो पुराने अवशेष हैं, उससे पता लगता है कि वो एंशिएंट पुरानी यूनिवर्सिटी थी सबसे, और कितनी बड़ी थी वो, ठीक है. एंड द murals of the Ajanta caves tell us so vividly about the dresses, hairstyle, jewelry and social life of the people of that era. उसके बाद है नेक्स्ट कॉइन्स. कॉइन्स से हमें पता लगता है कि उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस किंगडम की, ठीक है, कौन सा राजा, कौन सा किंग वहाँ पर रूल करता था, कौन सी वहाँ पर करेंसी चलती थी, राजा को क्या पसंद था. फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त कॉइन्स टेल अस दैट ही वॉज अ गुड वीना प्लेयर. अब समुद्रगुप्त के टाइम पर जो भी कॉइन्स हमें मिले हैं उन पर एक वीना को प्ले करते हुए समुद्रगुप्त की पिक्चर है, तो उससे हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त जो राजा थे उनको वीना प्लेइंग करने का बहुत शौक था, ठीक है. तो इस तरीके से हमें पुरानी चीज़ों से पता लगता है. उसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स. अदर ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, जैसे
fossil remains of things, जैसे कि pieces of pottery हो गया, sculpture हो गए, paintings हो गई, ornaments मिल गए, ठीक है. They tell us more about who created them and when they were made. Archaeologists also study plant remains, animal bones and food grains buried underground and found at different size. ठीक है. Now do you know numismatics is the study of coins. जो भी coins मिले हैं, coins की study करना, that is called numismatics. नाउ लिटरेरी सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, जो भी हमारे पास रिटर्न में होता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज. फाइन. सो दे यूज द बार्क ऑफ बर्च ट्री और पाम लीव्स टू राइट बुक्स. पहले क्या होते थे, पेपर नहीं होते थे, तो लोग किस पर लिखते थे, बार्क ऑफ ट्रीज पर लिखते थे, या फिर बड़े बड़े ट्रंक जो होते थे उन पर लिखते थे. दीज टेक्स्ट कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. और इनको क्या कहते थे, ये लिखी हुई जो चीजें होती थी जैसे कि किसी ट्री पर या वट एवर, उसको कहते थे मैन्यूस्क्रिप्ट. आर नाउ प्रिजर्व्ड इन मोनेस्ट्रीज और लाइब्रेरी. अभी भी पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो अभी भी मोनेस्ट्रीज वगैरह में प्रिजर्व करके रखी हुई हैं. उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, सिक्युलर लिटरेचर. सिक्युलर लिटरेचर क्या होता है, सिक्युलर दैट इज पवित्र. That includes biographies, dramas, historical works and the accounts of foreign travelers. जैसे अर्थशास्त्र written by Kautilya provides useful information about the social and political condition of the Mauryan age. जैसे हमारे पास एक बुक है that is अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, जिससे हमें पता लगता है उस टाइम वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी मौर्यन पीरियड के टाइम पर. उसके अलावा बाणभट्ट रोट हर्षचरिता. It deals with the life and times of King हर्षवर्धन. और ये डील करती है हर्षवर्धन जो किंग थे उसके टाइम पर लोगों की लाइफ कैसी थी. ठीक है. नेक्स्ट उसके अलावा क्या है, संगम लिटरेचर है, वो हमें मिली है. दैट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ द तमिल पीपल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पांड्या एंड चोला किंग. कि पांड्या और चोला किंग के टाइम पर कैसी लोगों की लाइफ थी तमिल में. फाइन. नाउ नेक्स्ट है, मैनी पिलग्रिम्स केम टू इंडिया. बहुत सारे जो यात्री थे वो इंडिया में आए, विजिट की उन्होंने बुद्धिस्ट प्लेसेस. एंड फाहिन विजिटेड इंडिया इन द 5th century CE. Hunsung, the famous Chinese pilgrim, arrived in India in 7th century CE. They threw light on the political, economic and religious condition of those time. उन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी हैं जहाँ पर उन्होंने इंडिया के लोगों की लाइफ के बारे में लिखा है, अबाउट द रिलीजियस कंडीशन, अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन एंड अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट है इंडिजिनस एंड फॉरेन लिटरेचर. Okay, what is that? Literary texts written in the past by people of our country are called indigenous literature. जो हमारे लोगों ने लिखे हैं, जो इंडियन पीपल ने लिखे हैं हमारे इंडिया के बारे में, that is called indigenous literature. On the other hand, text written by foreigners, जो इंडिया में घूमने के लिए आए थे या कुछ एक्सपीरियंस लेने आए, उन्होंने जो लिखा है that is referred as foreign literature. Okay? जो इंडियन पीपल ने लिखा है दैट इज इंडिजिनस लिटरेचर वहाँ के बारे में, और जो फॉरेन पीपल जो इंडिया में एक्सपीरियंस करने आए या घूमने आए दैट इज कॉल्ड फॉरेन लिटरेचर. बिसाइड्स देयर आर सम एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज हु स्क्रिप्ट वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड सो फार. कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज भी हैं हमारे पास जो अभी तक जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं जा सकी है. ठीक है. सो वी आर अनेबल टू नो व्हाट दे कंटेन एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ स्क्रिप्ट. जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें मिली है. ठीक है. उसका कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं, सिंबल्स जो यूज किए गए हैं, वो सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, वो एग्जैक्ट अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है कि उस हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है. फाइन. नाउ नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस. Inscriptions is also the important means of recording information during the past. जैसे कि किसी टैबलेट की फॉर्म में, ठीक है, मिट्टी पर लिख दिया, फिर उसको सुखा दिया, पिलर पर लिख दिया, मेटल प्लेट्स पर लिख दिया, वॉल ऑफ केव्स पर ड्रॉ कर दिया या लिख दिया, that are called inscriptions. The inscriptions were written in different languages at different places. अलग अलग places पर अलग अलग languages में जहाँ जिसका रूल होता था वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पर इंस्क्रिप्ट करा लेते थे. फाइन. Now let's recall the chapter. History is the story of man and it is not concerned with the life and actions of the kings alone. It also tells you about the ordinary people lived in the past. And the period for which we have no written records are called prehistory. Recording events in the order in which they happened is called chronology.
Two kinds of historical sources are there, that are archaeological and literary. Literary sources may be sacred or secular, and their authors are Indians or foreigners who visited India. Archaeological sources include monuments and coins, paintings, weapons, potters, ornaments, and all other concrete objects or artifacts associated with the past events. So this is the chapter bache. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.